whatever questions are relevant for that particular topic, we will take those questions. और उसके अलावा अगर कोई दूसरे questions हैं तो फिर हम उनको after the complete session, after the end of this today's class, we will take those questions. With this, I request Sanita ji to kindly proceed with today's session, and thank you all for joining. Just a minute. Okay. Anurag Kashyap ji has left the meeting. Anyway, if he'll join Sanita ji, I'll admit him again. Yeah, actually, what happened is I started recording, and due to some technical errors, if I start the recording, so he will leave automatically. I got a note, so I told. Maybe because he wasn't invited and somehow he was added into the group. No idea. That's why. That's okay. That's okay. Okay, fine. Yeah. Okay. Uh, Okay, so you may begin. And before that, I would request everyone, Shaurikant ji, and even I am putting my video off. We shall put our video off so that there are no network aberrations in Sanita ji's system. Thank you. Namo Namaha. Good morning to one and all present here. So yesterday we saw the introduction to Sanskrit as a language and its literature. It was an outline for the same, and yes, today we are going to start with spoken Sanskrit. But before starting with it, I would like to answer the question Anurag ji asked yesterday about the Agam. Basically, Agamas are the definition for Agamas is Agachanti Buddhim Arohanti Yasmat Abhyudayanihi Nishreya Sopayah Sah Agamah. So basically, what are Agamas? Agamas are this is a term for Agamas are divided into two parts, Vedic and Avedic. The Vedic ones are Ved, Itihas, Purana, etc. And Avedic are Bauddha, etc. Now the time period for the Agamas are 2nd to 4th century BC, and after this, in this period particularly, Tantra Sahitya was given the name Agama, which was again classified into three types. Those three types are Shaiva, Vaishnava, and Shakta. All these three types again has again subtypes. So Shakta has two subtypes. These are Dakshinachar and Vamachar. Dakshinachar is Upasna Tantra, that is the puja, etc. what we do regularly, but a bit different from that. And Vamachar basically relates to Vashikaran, in short, black magic. These are mainly followed in South and East India. So Dakshinachar is followed mostly, puja ityadi, and Vamachar is followed by the proper tantrikas. So what is the difference between again Dakshinachar and Vamachar is Dakshinachar उसका जो result होता है it's not so एकदम instant नहीं होता, and Vamachar is something the one who wants कि हाँ ये जल्दी मिलना चाहिए, जो किसी भी कर्म की अगर कोई प्राप्ति है तो वो मुझे जल्दी होनी चाहिए. For that, yes, tantrikas use Vamachar. So yes, this is used in specific parts of India, that is South and East India mainly. So this yes. So have I answered your question? Okay. Now before starting with spoken Sanskrit, I would like to tell you a few things about spoken Sanskrit. Yes, this is as we discussed yesterday, we are not going to take grammatical terms over here, and also we will be doing it in a different way than in
the it's not that difficult as we see in other texts, Sanskrit texts like Kavya and Kavyas, etc. This is a basic level. Okay, so we'll start with spoken Sanskrit. Yes, so while teaching spoken Sanskrit, I will act at times and also share the screen at the same time. So just let me know if I am not visible or if there is some problem. Okay, I'll just give me a minute. I'll share my screen. Yes. So, Namo Namaha, and we'll start with spoken Sanskrit. So, first of all, we'll start with Mama Nama Samhita Asti. Mama Nama Samhita Asti. What does this mean? इसका मतलब क्या होगा? मेरा नाम संहिता है. ओके, मेरा नाम संहिता है. और in English, what do we say? My name is संहिता. ओके, अब जब मुझे प्रश्न पूछना है किसी को कि आपका नाम क्या है, तो संस्कृत में हम पुरुष मतलब पुरुषवाचक जो शब्द होते हैं उसके लिए हम उपयोग करते हैं भवतः. भवतः नाम किम. भवतः नाम किम. ठीक है. और अगर हम किसी स्त्री वाचक शब्द या स्त्री को अगर हम पूछते हैं, स्त्रीलिंग शब्द पूछते हैं हम किसी को कि आपका नाम क्या है, जैसे हम किसी महिला को या किसी बालिका को अगर पूछते हैं तो हम क्या पूछेंगे? भवत्याः नाम किम. ठीक है. तो मम नाम संहिता अस्ति. भवतः नाम किम. ठीक है. ऐसा जब मैं पूछूंगी तब मैं किसी पुरुष को पूछ रही हूँ. ठीक है. तो अब मैं सीरियल नंबर लेके क्वेश्चन पूछूंगी, तो जिसका भी वो सीरियल नंबर हो वो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकता है. ठीक है. तो सीरियल नंबर 13. भवतः नाम किम. इज ही हियर? Is this serial number 13? Fine. So do we have serial number 10 then? 10. Fine. Anshul ji? जी. I think if you, ma'am, you can see the names as well on the site. Can you? No, actually. Okay. So I'll tell you the names. So and then we can go. Arpan Gautam is here. Arpan can reply for now. Yeah. May I try, ma'am? Arpan. Gauri here. Gauri. May I try? Yes, sure. भवत्याः हाँ. Yes, sir. हाँ, भवत्याः नाम किम? मम नाम गौरी अस्ति. हाँ, उत्तमम. Okay, you can mute your mic. Very good. Okay. अर्पण जी? Yes, ma'am. Yes. भवतः नाम किम? मम नाम अर्पण अस्ति. अर्पणः अस्ति. उत्तमम. Very good. Okay, fine. आदित्य जी? Ma'am, Yes. may I? Yes, ma'am. Yes, sure. मम नाम रवि अस्ति. मम अच्छा, मम नाम रवि अस्ति. हाँ, रवि ही अस्ति. मम नाम. ओके. जब हम हिंदी में कोई एक वाक्य बोलते हैं, मेरा नाम
रवि है, ठीक है, तो हम वहाँ पे जो नाम शब्द है वो जो म है वो हम पूरा नहीं बोलते, ठीक है, पर जब हम संस्कृत बोलते हैं तब हमें वो पूरा बोलना है, ठीक है। जब भी हमें वो आधा बोलना होगा तब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे भवतः नाम किम, किम जो शब्द है वहाँ पे म के नीचे एक लाइन है जिसको हम हलंत बोलते हैं, तो उस अक्षर को हमें आधा बोलना होता है जैसे किम, ठीक है। तो भवतः नाम किम, जैसे आपने उत्तर दिया मम नाम रवि ही अस्ति, ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू। Ma'am, may I यस try? श्योर। मम नाम लेखा अस्ति। उत्तमम, वेरी गुड, मम नाम लेखा अस्ति, वेरी गुड, yes, okay, is there anyone else who wants to try this? I want to try. Yes, Yes, ma'am. I want Mama Nama Abhijit Sharma. yes, mama namo, yes, uttamam, very good. So the things to be noted here are, first thing is how to say our name in Sanskrit is mama namo, जो कुछ भी हमारा नाम होगा वो अस्ति। और अगर हम किसी पुरुष को पूछ रहे हैं, किसी बालक को पूछ रहे हैं, तो हम क्या पूछेंगे, भवतः नाम किम, ठीक है। और अगर हम किसी स्त्री को, किसी बालिका को अगर हम पूछ रहे हैं तो हम क्या पूछेंगे, भवत्याः नाम किम, ठीक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और देखेंगे, ठीक है। तो अब ओके, तो हाँ, अब हम देखेंगे कि चषकः, ठीक है, चषकः, मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी और उनका नाम संस्कृत में कहूंगी और उनके सर्वनाम यानी प्रोनाउंस कहूंगी, ठीक है। चषकः, चषकः मतलब ग्लास, चषकः, चमसः, चषकः, चमसः। जब ये जो चषक है वो मेरे पास में है तो मैं क्या कहूंगी, एषः चषकः, एषः चषकः, यह चषक है, ठीक है। और जब ये चम्मच ये जो चम्मच जो है ये मेरे पास नहीं है, ये दूर है मुझसे, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या किस शब्द का प्रयोग करूंगी, सः चमसः, ठीक है, सः चमसः, एषः चषकः, सः चमसः, ठीक है। फिर एषः चमसः, सः चषकः, एषः चषकः, चमसः, सः चषकः, ठीक है, यह चम्मच है, वह ग्लास है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम करते हैं पुल्लिंग शब्दों के लिए, सः और एषः का, ठीक है। अब अगर मुझे प्रश्न पूछना है, ठीक है, तो मैं कह इस प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करूंगी, ठीक है। जैसे एषः कः, ठीक है, तो एषः चषकः, और चम्मच दूर है तो मैं क्या बोलूंगी, सः कः, क्योंकि वो दूर है। जब कोई पुल्लिंग वस्तु अगर वो दूर होती है या फिर व्यक्ति अगर वो दूर होती है तो मैं सह का उपयोग करूंगी, और अगर नजदीक है तो मैं एषः का उपयोग करूंगी, ठीक है। यह स्पष्ट है। तो हम ठीक है, अब हम पीपीटी देखेंगे फिर से। सनिता जी, एक प्रश्न है इस बीच में जी। जेलम वोरा जी ने पूछा है, हाँ। व्हाई डू वी हैव टू पुट विसर्ग फॉर रवि एंड नॉट फॉर अदर नेम्स। तो ये थोड़ा क्लियर कर दें कि नाम जब हम कर रहे थे इसमें विसर्ग कब लगाना है कब नहीं। जी, ओके। सो जो भी जैसे हम कोई भी शब्द कहते हैं, जैसे अगर रवि ही लेते हैं या तो फिर अंशुल जी भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे उस शब्द का अंत
अकार अकार से हो रहा है, जैसे राम, अगर ऐसा शब्द है तो अगर हम वो शब्द तोड़ के अगर वापस लिखते हैं, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट। ओके, एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है ना अंशुल जी? यस मैम, जी दिख रही है। जी, ओके ओके। तो 1 मिनट, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगी। अगर मैं राम कहती हूँ तो यस, 1 मिनट। ठीक है, यस, ये विजिबल है ना? ठीक है, तो जब मैं राम ये जो कहती हूँ, अगर मैं, तो हाँ, तो उस टाइम पे ये राम ये शब्द कैसे बन रहा है? रा, र प्लस आ, म और अह। ठीक है, तो जो भी संस्कृत शब्द है सारे, वहां पे हम हमेशा हम विसर्ग लगाते ही है। ठीक है, अगर सिर्फ राम ओके नहीं, मैम, अंडरस्टूड। हाँ, रामः, रविः, कविः, दशरथः, लक्ष्मणः इत्यादि जितने भी शब्द है, वहां पे हम हर जगह पे पुल्लिंग में विसर्ग लगाते ही है। ये एक हुआ। अब हम आगे, हाँ, ओके, अब हम आगे देखेंगे। यस, तो ओके, हाँ, तो जैसे हमने देखा कि एषः, ठीक है, जब कोई पुरुषवाचक पुल्लिंग चीज, या फिर कोई पुरुष व्यक्ति अगर हमारे नजदीक होता है, तो हम उसके लिए एषः, एषः का उपयोग करेंगे, और अगर वो दूर है तो हम सह का उपयोग करेंगे, और अगर प्रश्न पूछना है तो हम कह का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो उसे याद रखने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एषः मतलब नजदीक, एषः सः कः। ठीक है, एषः सः कः। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब हम कुछ शब्द देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने चमसः देखा, एषः चमसः, ये चम्मच मेरे पास में है, इसीलिए मैं इसे क्या कहूंगी? एषः। ठीक है, अगर मैं ये गौरी जी को पूछूंगी, ठीक है, तो वो क्या कहेंगी? गौरी जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? यस मैम। यस, ठीक है, तो आप इसे क्या कहेंगी? एषः, सॉरी, चमसः। चमसः। ठीक है, तो एषः चमस, मैं एषः का उपयोग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये जो चम्मच है ये मेरे पास में है, लेकिन आपके पास में तो नहीं है, तो आप किस शब्द का उपयोग करेंगी? सह। सह। हाँ, सह चमसः, क्योंकि आपसे तो दूर है ना। ठीक है, मेरे समीप है। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस, वैसे ही चषकः, एषः चषकः और सः चषकः। ठीक है, वैसे हम इन सारे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं पुल्लिंग में। ठीक है, सः मतलब जब दूर होती है कोई वस्तु तो, और एषः जब कोई वस्तु पास होती है। कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखेंगे हम। ठीक है, जैसे चमसः चषकः हमने देखा, और एक प्रश्न है बीच में। हाँ जी जी। चमसः क्या स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? नहीं, संस्कृत में वो पुल्लिंग शब्द है।
जी वी कैन कंटिन्यू। जी ठीक है। फिर सह एषः दूरभाषः, ठीक है। फिर वैसे ही तालः, एषः तालः और दूर हुआ तो सह तालः, ठीक है। फिर सुधाखंडः, दैट मीन्स चौक, सुधाखंडः, ठीक है। वैसे ही बालकः, कृषकः, शौचिकः, ठीक है, मतलब टेलर, छात्रः, पुरुषः, ठीक है। वैसे ही काकः, कपोतः, काकः मतलब कौवा, कपोतः कबूतर, गजः हाथी, बिडालः बिल्ली, ठीक है। अश्वः, वैसे ही बाकी के शब्द है। तो ठीक है, आगे जाए। ठीक है, अब जब हम स्त्रीलिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तब हम जैसे हमने पुल्लिंग में देखा, एषः अगर पास हो, सह अगर दूर हो और प्रश्नवाचक कः, ठीक है, एषः सह कः। अब जब हम स्त्रीलिंग देखते हैं तभी भी वही है, ठीक है। जब अगर नजदीक हो, जैसे वाटिका, वाटिका, एषा वाटिका, ठीक है। और स्थालिका, ठीक है, जब दूर होती है तब हम सा स्थालिका, ठीक है। एषा स्थालिका, एषा वाटिका, सा स्थालिका, ठीक है। और एषा का, ठीक है, एषा वाटिका, सा का, सा स्थालिका। इस तरह से हम स्त्रीलिंग में उपयोग करेंगे एषा, सा और का, ठीक है। अब कुछ उदाहरण देखेंगे, ठीक है। जैसे एषा कुंचिका, कुंचिका मतलब की, ठीक है। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहूंगी, ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं वो मैं आपको भेजूंगी, इसलिए अगर आप लिख रहे हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो सारे शब्द मैंने आज लिए हैं वो बहुत ही आसान शब्द है, तो अभी मैं बता तो रही ही हूँ, ठीक है। तो फिर भी आपको ये पीपीटी मिलने के बाद अगर किसी शब्द में शंका हो तो हम कल भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। कुंचिका मतलब की, चाबी। उत्पीठिका मतलब टेबल, ठीक है। वैसे ही मापिका मतलब स्केल, छुरिका मतलब चाकू, घटिका मतलब घड़ी, ठीक है। और वाटिका हमने देखा, वाटिका और स्थालिका, ठीक है। ये है कुछ स्त्रीलिंग शब्द। हाँ, अब हम प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। प्रतीक जी, प्रतीक जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? प्रतीक सुतार जी। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते। एषा का, हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, एषा का, मैम सॉरी, मैं अभी तुरंत ही जुड़ा हूँ इसलिए मैं जी थोड़ा। ठीक है। एषा वाटिका, ठीक है। अगर कोई चीज, अगर कोई स्त्रीलिंग वस्तु आपके नजदीक हो, समीप हो, ठीक है, तो आप उसके लिए एषा का प्रयोग करेंगे, और अगर वो दूर हो तो आप सा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर प्रश्न पूछना हो तो हम का प्रयोग करेंगे। जैसे एषा का, जैसे मैंने आपको पूछा, तो इसका उत्तर आप मुझे क्या देंगे? सा वाटिका, क्योंकि ये जो वाटिका है वो आपसे दूर है, ठीक है। ठीक है, हम और एक प्रश्न पूछेंगे। शिखा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती है? यस मैम, गुड जी मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। एषा का, सा थाली, हाँ, सा स्थालिका, सा थालिका, स्थालिका, थालिका, हाँ जी। आपको ये यहाँ पे पीपीटी में जो शब्द सबसे लास्ट है, उसी का मतलब है थाली, ठीक है। तो सा थाली, ठीक है। सा स्थालिका,
यस, उत्तमम. वेरी गुड, थैंक यू. मैम थैंक यू को क्या बोलते हैं? धन्यवादः. धन्यवादः. धन्यवादः मैम. स्वागतम अस्तु. ठीक है, तो अंशुल जी कोई प्रश्न है? जी, एक प्रश्न मैं रखना चाह रहा हूँ इसमें जैसे जो भी हमारे सेंटेंसेस हैं, इसमें हाँ. अंत में अस्थि का उपयोग कितना मतलब वर्जित है या रखना है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल वैसे हाँ, ऑप्शनल है, पर अगर हम इसे रखते हैं तो भी कोई ये नहीं है, ऑप्शनल है. अस्थि जी, रख जी. सकते हैं. जी, एक अस्थि लेखा मतलब पेरेवाल है. जी एक लेखा पेरेवाल जी का प्रश्न है, हाउ टू नो विच वन इज मस्कुलिन इन फॉर थिंग्स. जैसे आपने हाँ, yes. चमचा का प्रयोग किया था हाँ, कि हाँ, संस्कृत में वो पुल्लिंग है लेकिन हम हिंदी में उसे स्त्रीलिंग मानकर भाषा जी. का प्रयोग करते हैं, तो वो जी. कैसे फर्क करेंगे? अब जब हम ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड पुल्लिंग है या कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग है या कौन सा वर्ड नपुंसकलिंग है? तो इसके लिए पहली चीज प्रैक्टिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है. दूसरी चीज है जो बहुत ज्यादा जिस पे हम रिलाई नहीं कर सकते, वो ऐसी है कि जो पुल्लिंग शब्द जो भी होते हैं वो ना अकारांत होते हैं, मतलब जिसके अंत में अ आता है. जैसे रामः या राम, ठीक है, रामः, श्यामः, चमसः, दूरभाषः, वैसे ऐसे जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं सामान्यतः. और स्त्रीलिंग शब्द को हम कैसे पहचानेंगे? तो ज्यादातर ये जो शब्द होते हैं जैसे कुंचिका, उत्पीठिका, तो इनका जो अंत है ना वो आ से होता है, ठीक है. इसीलिए इन शब्दों को हम आकारांत शब्द भी कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द. लेकिन इससे थोड़ा सा आगे जाके अगर हम देखें तो स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं ना वो इकारांत भी होते हैं. जैसे कूपी, बॉटल को हम संस्कृत में कूपी कहते हैं, तो ये जो है वो इकारांत शब्द है, ठीक है. इसीलिए हम एक तो अभ्यास से, प्रैक्टिस से ही ये जान सकते हैं. वैसे देखने एक शब्द को देखने के बाद हमें अंदाज आ जाता है. जैसे फलों का नाम ऑलमोस्ट इसमें ही आता है, नपुंसकलिंग में ही आता है. तो ये थोड़ा सा 1-2 दिन और जाएंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा. जी. जी. अगला प्रश्न है कि सौचिक, व्हाट डज सौचिक मीन्स? आपने सौचिकः, शायद ये सौचिकः पुल्लिंग शब्द है, दैट मीन्स टेलर. अच्छा, अच्छा. जी. जी. और इसमें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं का शब्द वर्ण, हाँ. तो का मतलब हु होता है या व्हाट होता है? या एक्चुअली इट इज व्हाट, और What? अगर वो पर्सन है तो इट्स हु. जी. या. ठीक है, मतलब दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है. जी हाँ, हो सकता है. जी, फिलहाल इतने प्रश्न, हम आगे बढ़ सकते हैं. जी, ठीक है. तो अब हम देखेंगे वस्तुएं कुछ, ठीक है. जैसे कि कंकणम, कंकणम मतलब बैंगल, ठीक है. एतत् कंकणम, ठीक है. और पुस्तकम, ठीक है, पुस्तकम. तो ये जो कंकणम है वो मेरे पास है, तो इसलिए मैं, जैसे हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में उपयोग किया था सह, ठीक है, और एषः और एषा, ठीक है. तो वैसे ही इसके लिए क्या होगा, कंकणम के लिए एतत्, एतत् कंकणम, ठीक है. और पुस्तकम मुझसे दूर है, पुस्तक जो है वो दूर है, तो इसलिए मैं क्या उपयोग करूंगी, तत् पुस्तकम, ठीक है, तत् पुस्तकम. एतत् कंकणम तत् पुस्तकम. वैसे ही एतत् पुस्तकम तत् कंकणम, ठीक है. और ठीक है, तो और किम अगर मुझे पूछना है तो मैं पूछूंगी एतत् किम, ठीक है, एतत् किम. इसका उत्तर अगर मैं दूंगी तो होगा एतत् पुस्तकम. अगर आप में से कोई इसका उत्तर देता है और ये पुस्तक जैसे कि आपसे दूर है तो आप बोलेंगे तत् पुस्तकम. तत् किम, तत् पुस्तकम, ठीक है. तो हम कुछ शब्द देखेंगे. जैसे यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कुछ ये शब्द कौन से हैं. नपुंसकलिंग न्यूटर वर्ड्स कौन से हैं. पुष्पम, पुष्पम स्पष्ट है, पुष्प, पुष्पम, एतत् पुष्पम वा अथवा तत् पुष्पम.
पुस्तकम जैसे हमने अभी देखा, तत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, फलम मतलब फल, कोई भी फल, यहाँ पे किसी एक फल का नाम नहीं दिया गया है, हम बाकी फलों के नाम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, ठीक है। जलम पानी, ठीक है। क्रीडनकम मतलब खिलौना, वो भी एक नपुंसकलिंग शब्द आहे। एतत् क्रीडनकम, तत् क्रीडनकम, ठीक है। फिर उपनेत्रम, ठीक है, उपनेत्रम मतलब चश्मा, ठीक है। एतत् उपनेत्रम, और अगर ये दूर हो तो तत् उपनेत्रम। और अंतिम शब्द है संगणकम, संगणकम मतलब क्या है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है। एतत् संगणकम, तत्संगणकम, ठीक है। तो जैसे हमने तीनों भी जो है उसमें लिंग है, उसमें हमने शब्द देखे हैं, और उनके जो सर्वनाम शब्द है वो भी हमने देखे हैं, ठीक है। तो एक बार एक रिवीजन कर लेंगे इन शब्दों की, ठीक है। और हम आपको ये पीपीटी भेजेंगे ही, तो आप फिर से इसे देखेंगे तो आप रिवाइज कर पाएंगे इसे, ठीक है। पुल्लिंग में एषः, सः, कः, ठीक है। स्त्रीलिंग में एषा, सा, का, और नपुंसकलिंग में एतत्, तत्, किम, ठीक है। ऐसे हम इन शब्दों का उपयोग करेंगे। अंशुल जी, कोई प्रश्न है या हम आगे बढ़े? आगे बढ़ सकते हैं अभी। जी, ठीक है। अस्तु। अब हम देखेंगे, आपको जो सामने चित्र दिख रहा है, वहाँ पे ऊपर प्रश्न है भवान कह, जैसे हमने देखा कि भवतः नाम किम हम पूछते हैं, और अगर स्त्रीलिंग हो, कोई महिला हो, कोई बालिका हो, तो हम पूछते हैं भवत्याः नाम किम। जैसे अगर हमें पूछना है किसी बालक को या किसी पुरुष को, भवान कह, आप क्या है, ठीक है, भवान कह। तो हम ऊपर देख पा रहे हैं, ये जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं अहम वैद्यः, अहम वैद्यः, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट है वो कह रहा है अहम विद्यार्थी, ठीक है, अहम वैद्यः, अहम विद्यार्थी, ठीक है। तो जब हमें किसी भी पुरुष को, किसी भी बालक को पूछना है कि भवान कह, आप कौन हैं, या फिर आप क्या करते हैं, ठीक है, तो हम क्या पूछेंगे, भवान कह, ठीक है। जैसे मैं अभी अंशुल जी को पूछूंगी कि भवान कह, अहम विद्यार्थी। उत्तमम, सही, अहम उत्तमम, हाँ, अहम विद्यार्थी, ठीक है। वैसे ही भवती का तो क्या है, अहम वैद्या, अहम वैद्या, मैं डॉक्टर हूँ। और अगर किसी स्टूडेंट को पूछा है तो क्या है, अहम विद्यार्थिनी, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर अगर मैं निर्जा जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? I think no. Yes, Lalita ji, can you please unmute yourself? Yes, ma'am. Yes. So bhavati ka, अहम विद्यार्थी, aham vidyarthini. Yes, very good. Aham vidyarthini. Can you अहम repeat it once? अहम Yes. विद्यार्थिनी, Yes, very good. Thank you. Please mute your mic. Yes. So अभी हमने यहाँ पर दो ही शब्द देखे हैं, दो ही प्रोफेशंस देखे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और हम ये देखेंगे, ठीक है। अहम मतलब मैं, भवान मतलब आप, ठीक है। अहम, भवान और भवती, ठीक है। भवान और भवती, भवान हम पुल्लिंग शब्दों के लिए भवान का उपयोग करेंगे, और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए हम भवती का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अहम शिक्षिका है, अहम महिला, अथवा अहम बालिका, ठीक है। तो हम आगे थोड़े से प्रोफेशंस देख लेंगे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि
जब नाम जब मैं किसी को अगर पूछती हूँ भवान कहो, जिससे अगर मैं किसी से पहली बार प्रथम बार अगर मैं मिली हूँ किसी को, और अगर मुझे पूछना है आपका नाम क्या है, भवतः नाम किम, ये भी सही है। और अगर मैं पूछूं भवान कह, ठीक है, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे भी हम नाम का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी को पूछूं कि भवती भवती का अगर मैं लेखा जी से पूछूं, ठीक है, तो लेखा जी क्या कहेंगी, अहम लेखा, ठीक है, तो हम लेखा भी ठीक है। और अगर वो अपने प्रोफेशन के बारे में बताए तो भी दैट्स फाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ प्रोफेशंस देख लेंगे, ठीक है। वैद्य मतलब डॉक्टर, स्त्रीलिंग में वैद्या, ठीक है, ठीक है। फिर है अभियंता, जो आप शब्द देख सकते हैं। विद्या विद्या भी नाम है वैसे, ठीक है, अहम विद्या इत्यादि, ठीक है। जैसे ही अभियंता, ठीक है, अभियंता मतलब इंजीनियर, ठीक है। और अगर लड़की हो, स्त्रीलिंग शब्द, अगर कोई महिला बालिका हो तो अभियंत्री, अहम अभियंत्री, ठीक है। फिर गायक गायिका, ठीक है। और गृहिणी मतलब हाउसवाइफ, ठीक है। नर्तक डांसर, नर्तकी, शी इज ऑल्सो अ डांसर, ठीक है। पत्रकार, फिर कवि ही, पोएट, और कवयित्री, ठीक है। फिर लेखक और लेखिका, आरक्षक मतलब पुलिस, ठीक है, और आरक्षिका। फिर है धीवर, फिशरमैन, ठीक है। फिर है पत्रवाहक, पोस्टमैन, ओके। फिर है शिक्षक, शिक्षिका, ठीक है, शिक्षक टीचर एंड शिक्षिका इज ऑल्सो अ टीचर, ठीक है। अंतराल वीर, अंतराल वीर, द वन हु गोज टू स्पेस, ओके। एंड वैमानिक, पायलट एंड वैमानिका, ठीक है। वैसे ही वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, वैज्ञानिका ऑल्सो साइंटिस्ट, ओके। तो अगर मैं जीनल जी से पूछूं, भवान कह, अहम विद्यार्थी। उत्तमम, वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवादः। अगर मैं पूछूं नीतेश मोदी जी से, भवान कह, अहम विद्यार्थी। उत्तम, वेरी गुड, यस, ओके। अब अगर मैं पूछूं सुजना जी से, भवती का, जी। अगर मैं पूछूं उज्जवल जी से, भवान कह, अहम विद्यार्थी। यस, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, ओके। अगर मैं पूछूं लेखा जी से, भवती का, अहम अभियंत्री। वेरी गुड, yes, उत्तमम, yes, you may use other words also, okay, yes, thank you लेखा जी। अगर मैं पूछूं विजयेंद्र जी से, भवान कह, ठीक है। अगर उत्कर्ष जी, भवान कह, अहम विद्यार्थी। यस, ओके, वेरी गुड, ओके, यह स्पष्ट है। कोई प्रश्न है अंशुल जी? जी, एक दो प्रश्न है। एक हार्दिक जी का प्रश्न है कि लेक्चरर को क्या बोलते हैं, तो आई थिंक शिक्षक या कोई और शब्द है लेक्चरर के लिए? अध्यापक बोल सकते हैं, आचार्य, अध्यापक, हाँ, जी जी। जी, और इसके अलावा एक विजयेंद्र जी का प्रश्न है, हाँ, भवतः नाम किम, बट एज किम इज न्यूट्रल, सो कैन वी यूज भवतः नाम कह और भवत्याः नाम का? no, yes, actually we have to use kim only because we are asking भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो जब हम नाम पूछते हैं तो संस्कृत में जो नाम शब्द है वो
नपुंसक लिंग है, ठीक है, तो हम वहां पे इसीलिए किम का प्रयोग करते हैं. एक्चुअली व्हाट आई थिंक इज कि ये जो है वो स्पोकन संस्कृत है, सो भवतः नाम किम या फिर भवान कह, ठीक है, वो हम ऐसे ही रहने देंगे. अगर हम इसमें ज्यादा और डीप में जाएंगे थोड़ा सा भी और, तो वी विल गो इनटू ग्रामर एंड उसके बाद इट विल बी अ बिट कंफ्यूजिंग. सो यस, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम. सो भवतः नाम किम जब हम पूछते हैं तब हम नाम किम, नाम, ठीक है, तो नाम जो शब्द है नामन संस्कृत में होता है, इसीलिए हम वहां पे किम का उपयोग करते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज किम ओवर देयर. So we will use Kim. Okay. Yes. और कोई प्रश्न है? इसमें कुछ और प्रोफेशंस हैं जिनके बारे में संस्कृत शब्द जिनके पूछे हैं. We will, हाँ, एडवोकेट. Yeah. So we will send you the list of the professions within a day or two. So you will get all the names of the professions in Sanskrit too. This way I use these as examples. अनुराग जी का भी प्रश्न है, व्हाट इज बॉस? बॉस को क्या कहते हैं? हिज वाइफ वांट्स टू नो. Yeah, so it's yes, Swami is fine, but it becomes that's or Adhikari is also fine. जी. Yeah. डॉक्टर के लिए वैद्य. वैद्यः, yes, वैद्यः. बैंकर का कोई प्रश्न शब्द है क्या? जी है. Yes, I will have to just okay, fine, I will send you the list. Okay, so we will send the list of all the names of the professions and their meanings. Yeah. Okay, we can go forward. Yeah. Okay. So now हमने ये देखा कि मेरा नाम संहिता है, मैं शिक्षिका हूँ, जैसे मम नाम संहिता, अहम शिक्षिका, ठीक है. वैसे ही जब हम जैसे हमारे सामने अब एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है स्वरा, आप सब देख सकते हैं, ठीक है. तो जब मुझे पूछना है कि इसका नाम क्या है, जब मुझे ऐसा पूछना है, इस बालिका का नाम क्या है, ठीक है, तो मैं पूछूंगी बालिकायाः नाम किम अस्ति, ठीक है. जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो आप सबको पता होगा कि हम बोलते हैं जब का आता है तब संबंध आता है. जैसे जो अगर वो टेबल पता होगा, कर्ता ने, कर्म को, वैसे संबंध का, के, की. जब भी का, के या की ऐसा कुछ भी आता है, जैसे बालिका का नाम क्या है, ठीक है, तो तब हम संबंध का उपयोग करते हैं. तो जब हम संस्कृत में संबंध का उपयोग करते हैं, ठीक है, तब हम कहते हैं बालिकायाः नाम किम, ठीक है, बालिकायाः नाम स्वरा अस्ति, ठीक है. जैसे पहले एक प्रश्न था कि हम बालिका, हम विसर्ग जो है वो सबको लगाते हैं या नहीं, तो हाँ, नाम को लगाते हैं, लेकिन जो नाम होते हैं सारे, बालिका, बालक, या तो फिर जो भी शब्द होते हैं जैसे नाम राम, श्याम इत्यादि, ठीक है, जब हम नाम बोलते हैं तो हम वो सिर्फ नाम कहते हैं, वहां पे हम नाम नहीं कहते. उसका कारण एक है कि वो नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है, इसलिए हम वहां पे नाम का ही उपयोग करेंगे. तो बालिकायाः नाम स्वरा अस्ति, ठीक है. फिर हम यहाँ पे देखेंगे नासिका, स्वरा का नाक, ठीक है, फिर हस्त, स्वरा का हाथ, ठीक है, और कर्ण मतलब स्वरा का कान, ठीक है. तो जब हम ये संस्कृत में कहेंगे, अगर मैं प्रश्न पूछूं कस्याः हस्तः, किसका हाथ, तो हम कहेंगे ना स्वरा का हाथ. तो वैसे ही हम उसे संस्कृत में कैसे कहेंगे, स्वरायाः हस्तः, ठीक है, स्वरायाः हस्तः. देन कर्णः, कस्याः कर्णः, किसका कान है, ठीक है, स्वरायाः कर्णः, ठीक है, स्वरायाः कर्णः, ठीक है. फिर तस्याः नासिका, स्वरा का नाक, ठीक है. तो हम हर वाक्य में तो हम स्वरायाः इसका उपयोग ना करें, जैसे हम प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम उपयोग करेंगे तस्याः नासिका, ठीक है, तस्याः नासिका. हमने यहाँ पे क्या किया है, स्वरायाः
की जगह पर हमने तस्याः नासिका इसका उपयोग किया है। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे है, मैं एक बार मैं ये बोलूंगी, ठीक है, ताकि सबको और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। उमा के जो पति है वो है शिव। ठीक है, उमा के पति का नाम शिव है। ठीक है, तो अगर हमें ये संस्कृत में कहना है तो जैसे अभी हमने बालिका का बालिकायाः किया, वैसे हम यहाँ पे उमा का क्या करेंगे, उमायाः। ठीक है, उमायाः पतिः शिवः। ठीक है, उमायाः पतिः शिवः। ठीक है, वैसे ही अहिल्या, अहिल्या का क्या होगा, अहिल्याः पतिः गौतमः। ठीक है, अनुराग जी क्या बताएंगे, सुभद्रा पतिः अर्जुनः। सुभद्रा के पति का नाम अर्जुन है, इसे हम संस्कृत में कैसे कहेंगे? हेलो, सॉरी म्यूट था, सॉरी। हेलो मैम, मैं बताऊं? जी अनुराग। सुभद्राः पतिः अर्जुनः। हाँ, अब जब जैसे हमने बालिका का बालिकायाः देखा, वैसे ही हम सुभद्रा का क्या करेंगे, सुभद्रायाः। सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः। पतिः अर्जुनः, सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः। ठीक है, थैंक यू। फिर हम देखेंगे सुमित्रा, सुमित्रा पतिः दशरथः। ठीक है, जिनल जी आप बताएंगे? जिनल जी, जी। सुमित्रा यस, जिनल जी आप हैं? मैं बता सकती हूँ? हाँ जी बताइए। सुमित्राय पति दशरथ। हाँ, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, सुमित्रायाः। ठीक है, सुमित्रायाः पतिः दशरथः। ठीक है जी, धन्यवाद। फिर हम देखेंगे सत्यभामा। भरत जी क्या बताएंगे? जी ओके। अर्पण जी आप बताएंगे? यस मैम। जी। सत्यभामायाः पतिः कृष्ण। उत्तमम, वेरी गुड। सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। वैसे ही शकुंतला पतिः दुष्यंतः। इसका हम क्या करेंगे आकांक्षा जी? शकुंतलाः पतिः दुष्यन्तः। हाँ, उत्तमम। अब थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ऐसा है कि शकुंतलायाः पतिः दुष्यन्तः। ठीक है, शकुंतलायाः पतिः दुष्यन्तः। शकुंतलायाः पतिः दुष्यन्तः। हाँ, वेरी गुड, उत्तमम। उत्तमम, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने स्त्रीलिंग में देखा, इसको मैम हम ऐसे बोल सकते हैं कि सत्यभामा कृष्णस्य पत्नी। हाँ, अब हम वो पुल्लिंग का जो संबंध आएगा वहां पे हम इसके बाद वही देखने वाले हैं। कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा, हम वो ही देखेंगे आगे। अभी हमने स्त्रीलिंग देखा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में जब हम संबंध की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, उमा का उमायाः, अहिल्या का अहिल्यायाः, सुभद्रायाः, सुमित्रायाः, सत्यभामायाः
और शकुंतलायाः। वैसे ही सीता हो तो सीतायाः, माला हो तो मालायाः। ठीक है। फिर अब हम देखेंगे पुल्लिंग में हम ये कैसे करेंगे। तो अत्र एकः बालकः अस्ति, यहाँ पर एक बालक है जिनका नाम है राम, रामः। तो बालकस्य नाम किम् अस्ति? बालकस्य नाम रामः अस्ति। ठीक है, बालक का नाम राम है। ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं बालक का हस्त, मतलब राम का यहाँ पे हाथ है, फिर राम का कर्ण और राम की नाक है यहाँ पे। ठीक है। अब अगर हमें यही सारा संस्कृत में बोलना है तो जैसे हमने स्त्रीलिंग में याहा का उपयोग किया था स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, वैसे हम पुल्लिंग शब्दों के लिए स्य का उपयोग करेंगे। ठीक है। वैसे बालकस्य नाम रामः अस्ति। कस्य हस्तः? किसका हाथ? रामस्य हस्तः। ठीक है, राम का हाथ। रामस्य हस्तः। कस्य कर्णः? कस्य कर्णः? रामस्य कर्णः। ठीक है। फिर है कस्य नासिका? कस्य नासिका? रामस्य नासिका। रामस्य नासिका। ठीक है। वैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाके अगर देखें तो यहाँ पे है रामः पुत्रः लवः, मतलब राम का पुत्र लव है। ठीक है। तो हम उसे संस्कृत में कैसे बोलेंगे? रामस्य पुत्रः लवः। ठीक है, रामस्य पुत्रः लवः। वैसे ही शिव जी का पुत्र गणेश है, तो हम क्या बोलेंगे? शिवस्य पुत्रः गणेशः। ठीक है। वैसे ही दशरथ जी का पुत्र राम जी है। ठीक है। तो उसको हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? आदित्य जी। रामस्य पुत्रः लवः। हाँ, दशरथः का कैसे कहेंगे हम? दशरथस्य पुत्रः रामः। उत्तमम, वेरी गुड, थैंक यू। प्लीज म्यूट योर माइक। वेरी गुड। यस। अब वसुदेवः कृष्णः। अंशुल जी आप बताएंगे? वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। यस, उत्तमम, वेरी गुड। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। यस। उसके बाद है पांडुराजः अर्जुनः। यस। इसका कौन बताएगा? उज्जवल जी, उज्जवल शाह जी। पांडुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। जी, धन्यवाद। वेरी गुड। और रावणः मेघनादः। शिखा जी आप बताएंगी? जी। रिया जी आप बताएंगी? मैं बता सकती हूँ। हाँ जी। रावणस्य पुत्र मेघनाद। हाँ, रावणस्य पुत्रः मेघनादः। जी, वेरी गुड, उत्तमम, थैंक यू। वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे। जी जी। रावणस्य पुत्रः मेघनादः। जी, उत्तमम, वेरी गुड। वैसे ही अब हम देखेंगे लवः पिता रामः। ठीक है, लवस्य पिता रामः। लव के पिता राम है। ठीक है। वैसे ही गणेशः पिता शिवः। इसका कैसे हम करेंगे? प्रतीक जी। प्रतीक जी। मैं बताऊं मैम? हाँ जी, बताइए। गणेशस्य पिता शिवः। उत्तमम, वेरी गुड। यस। हाँ, गणेशस्य पिता शिवः। यस। वैसे ही रामः दशरथः। रामस्य
पिता दशरथः, ठीक है। वैसे कृष्णः वसुदेवः, उसका हम कैसे करेंगे? हर्ष अग्रवाल जी। जी रामस्य पिता दशरथः। हाँ, वैसे कृष्णः वसुदेवः का हम कैसे करेंगे? पिता वासुदेवः। हाँ, कृष्णस्य पिता वसुदेवः। पिता यस, ठीक है। अब अर्जुनः पिता पांडुराजः, ठीक है। तो ललिता जी आप बताएंगी? यस मैम। अर्जुनस्य पिता पांडुराजः। हाँ, अब यहाँ पर आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन यहाँ पे पिता को हम पिता ही कहेंगे, पिताहा ये नहीं कहेंगे। तो अर्जुनस्य पिता पांडुराजः, ठीक है। ओके, थैंक यू। यस यस, दैट्स फाइन। हाँ, ठीक है। अर्जुनस्य हाँ, पिता पांडुराजः। उत्तमम, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स राइट। और फिर मेघनादः रावणः, इसे हम कैसे कहेंगे? रिद्धि जी। जी, मेघनादस्य पिता रावणः। वेरी गुड, ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन है, मेघनादस्य नहीं, सिर्फ मेघनादस्य पिता रावणः, ठीक है। आप और एक बार ट्राई करेंगे? मेघनादस्य पिता रावणः। उत्तमम उत्तमम, यस, वेरी गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू। अब जैसे हम पहले देख रहे थे, उमायाः पतिः शिवः, ठीक है। अब शिवस्य पत्नी उमा, ठीक है, हम वैसे देखेंगे। तो गौतमः पत्नी अहल्या, इसका हम कैसे करेंगे? शौर्यकांत जी। गौतमस्य पति अहिल्याः। गौतमस्य पत्नी पति अहिल्या। सॉरी सर, हाँ हाँ जी, और एक पत्नी बार अहिल्याः। हाँ, गौतमस्य पत्नी अहल्या। अहिल्याः। अहिल्याः नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ अहल्या, ठीक है। अहिल्या। हाँ जी, धन्यवाद। सुजना जी क्या आप बताएंगी? अर्जुनः सुभद्रा। ओके। या शिवः पत्नी उमा। Okay, so while we okay, we'll say शिवस्य पत्नी उमा. Okay. ओके। Yes, शिवस्य. गौतमस्य हाँ. गौतमस्य पत्नी अहल्या। हाँ, the same way what sentence will we make for Arjunah? अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। Yes, very good. Uttamam. Thank you. Yes, the same way Dashrath. Thank you. Yes, Dashrathah patni Sumitra. Yes, Anurag ji, will you please try? Dashrathasya patni Sumitra. Yes, Uttamam, very good, absolutely right. Yes, thank you. Dashrathasya patni Sumitra. ठीक है, the same way Krishnah patni Satyabhama. Ujjwala ji, will you try? कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा। Thank you, Ujjwal ji. Thank you. Yes, that's true. And Utkarsh Pandey ji, will you please try Dushyantah patni Shakuntala? दुष्यन्तस्य पत्नी शकुन्तला। Yes, very good. Dushyantasya patni Shakuntala. Yes, that's true. Thank you. Okay, so we'll go further now. Yes, now the words you can see in front of you now are Ramayanam, Natya Shastram,
गोदानम, पुराणम, अर्थशास्त्रम, पंचतंत्रम. दीज वर्ड्स आर नपुंसकलिंग वर्ड्स. मतलब ये जो सारे शब्द आप अपने सामने देख सकते हैं, रामायणम, नाट्यशास्त्रम, गोदानम, पुराणम, ये जो सारे शब्द है वो नपुंसक लिंग शब्द है. तो जैसे हम पुल्लिंग में करते हैं, अगर राम हो तो रामस्य, लव हो तो लवस्य, शिव हो तो शिवस्य. हाँ, वैसे ही अगर पुल्लिंग नपुंसक लिंग में और पुल्लिंग में सिमिलैरिटी ये है कि जब हम संबंध के बारे में बात करते हैं, जिसे हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं संस्कृत में, जैसे रामायणस्य, वैसे ही रामस्य, वैसे ही रामायणस्य, नाट्यशास्त्रस्य, गोदानस्य, पुराणस्य, अर्थशास्त्रस्य, पंचतंत्रस्य. उसी प्रकार हम यहाँ पे भी लगाएंगे. जैसे रामायण किसने लिखा है, तो हम क्या कहेंगे, रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः. ठीक है, वैसे हम आगे देखेंगे. सुनीत जोशी जी क्या बताएंगे, नाट्यशास्त्रम लेखकः भरतः. ठीक है. रिया शर्मा जी क्या बताएंगे, नाट्यशास्त्रम लेखकः भरतः. जी, नाट्यशास्त्रस्य लेखकः भरतः. जी, वेरी गुड, उत्तमम. नाट्यशास्त्रस्य लेखकः भरतः. यस, बरोबर, ठीक है. थैंक यू मैम. यस, थैंक यू. गोदानम लेखकः प्रेमचंदः. ठीक है, तो ये वाक्य प्राची जी आप बताएंगे. गोदानस्य लेखकः प्रेमचंद्र. जी जी, हाँ, गोदानस्य लेखकः प्रेमचंदः. उत्तमम, वेरी गुड. जी, रजत शर्मा जी क्या बताएंगे, पुराणम लेखकः व्यासः. पुराणस्य लेखकः व्यासः. जी, उत्तमम. पुराणस्य लेखकः व्यासः. ठीक है, और अर्थशास्त्रम लेखकः कौटिल्यः. प्रतीक सिंह जी क्या आप बताएंगे. अर्थशास्त्रम लेखकः कौटिल्यः. जी, अब अर्थशास्त्रस्य लेखकः कौटिल्यः. ठीक है, आप एक बार फिर बताएंगे. अर्थशास्त्रस्य लेखकः कौटिल्यः. यस, उत्तमम. ठीक है, और अंतिम वाक्य, पंचतंत्रम लेखकः विष्णु शर्मा. प्रकाश भाई जी क्या आप बताएंगे, पंचतंत्रम लेखकः विष्णु शर्मा. मैम मैं ट्राई करता हूँ. जी जी, पंचतंत्रम लेखकः विष्णु शर्मा. जी, पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा. आप एक बार फिर ट्राई करेंगे. पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा. जी, उत्तमम. ठीक है. अंशुल जी कोई प्रश्न है. एक मिनट, एक दो प्रश्न पिछली स्लाइड से हैं कि भार्या और पत्नी आर दे सेम. यस, दे आर. हम उनकी जगह में. यस, ओके. एंड is this Shashti Vibhakti what we are studying right now? This is Shashti Vibhakti. This is Shashti Vibhakti. But the reason I didn't tell it is Shashti Vibhakti is I was going to tell it after we complete it. That is why. And एक इसमें कि जो आपने राम का उदाहरण दिया, उसमें तस्य नासिका ऐसा बोल सकते हैं ना, जैसे राम से नासिका. जी 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 जी, आगे बढ़ सकते हैं. जी, ओके.
तो जैसे हमने देखा यह है षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो बालकः का हो जाता है बालकस्य, माला का हो जाता है मालायाः, वैसे ही पुस्तकम का होता है पुस्तकस्य, ठीक है। वैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे और एक हम जान लेते हैं एक दो चीजें कि जैसे और भी ऐसे पुल्लिंग में भी सिर्फ अकारांत शब्द नहीं, मतलब जिन शब्दों के अंत में अ आता है सिर्फ ऐसे शब्द नहीं है, वहाँ पे और भी इकारांत शब्द भी है। जैसे हरि ही, ये जो है वो इकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो उसका जब हम षष्ठी करेंगे, अभी हमें करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल और एज एन इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग इट टू यू कि हरि ही जब हम शब्द देखते हैं तब इट बिकम्स हरे है, ठीक है, उसकी षष्ठी। फिर स्त्रीलिंग में जैसे लेखनी, ठीक है, जैसे मतलब पेन, लेखनी, हाँ। तो हम क्या कहेंगे, इसका जो षष्ठी विभक्ति होगा लेखन्या, हाँ, ठीक है। और वनम, उसका क्या होगा, वनस्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वी आर गोइंग टू सी वर्ब्स। अब हम क्रिया देखेंगे, क्रियापद, ठीक है। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट इट। जब हम क्रियापद की बात करते हैं, जैसे टेंसेस होते हैं इंग्लिश में काल, हिंदी में वैसे ही संस्कृत में भी है। सो वी आर गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन ओनली 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और वो भी उसका स्पेसिफिक चीज़ों पे। वी आर नॉट गोइंग टू सी द अदर थिंग्स जैसे इंग्लिश में और हिंदी में होते हैं। व्हाइल वी टॉक अबाउट स्पोकन संस्कृत वी सी ओनली अ फ्यू ऑफ देम, ओके। तो आज हम देखेंगे वर्तमान काल, दैट इज प्रेजेंट टेंस, विच वी कॉल इन संस्कृत एज लट लकारः, ठीक है। हमने सिर्फ वर्तमान काल या फिर प्रेजेंट टेंस इतना ही ध्यान में रखा, दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रथम पुरुषः। प्रथम पुरुषः मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, व्हाट वी टॉक अबाउट इन इट्स सिंगुलर। और बालकः गच्छति मतलब बालक जा रहा है, ठीक है, बालक जा रहा है। फिर बालकः खादति, बालक जो है खा रहा है, खादति। बालकः पिबति, ठीक है, सह बालकः पिबति, बालक क्या कर रहा है, पी रहा है, पानी पी रहा है, इत्यादि। वैसे ही बालकः खेलति, खेलति मतलब खेलना। वैसे ही पठति, बालकः पठति, पढ़ना, ठीक है। बालकः हसति, हंसना। वैसे ही बालकः लिखति और बालकः आगच्छति, बालक परत, बालक आता है, ठीक है। सो वी यूज गच्छति, खादति, पिबति, खेलति etc when we are talking about someone who is not present over here, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में आई थिंक थर्ड पर्सन कहते हैं। जी, ये कंफ्यूजन है यहाँ पे। और एक प्रश्न भी आया है कि बालक गच्छति, इज इट नॉट थर्ड पर्सन? तो ये इसका इट इज अ थर्ड पर्सन, ठीक है, इट इज अ थर्ड पर्सन। बालकः गच्छति, वी आर टॉकिंग अबाउट समवन, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, ठीक है। सो इट इज, यस, इट इज थर्ड पर्सन, ठीक है, इन इंग्लिश। क्या संस्कृत में इसे प्रथम पुरुष कहते हैं? हाँ जी, संस्कृत में इसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। और जब हम हमारे बारे में बात करते हैं तो हम उसे संस्कृत में ना, उस पुरुष को हम उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है जी। और कोई प्रश्न है अंशुल जी? नहीं, अभी आगे बढ़ो जी, ओके। वैसे ही जैसे मैंने कहा उत्तम पुरुषः, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पर्सन इन इंग्लिश, ओके। I'll just change it when I send the PPT so that it will not be a confusion for any one of you, ठीक है। लट लकार वर्तमान काल, जैसे देखा अहम, मैं जा रही हूँ, अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, मैं आ रही हूँ, ठीक है। अहम खादामि, मैं खा रही हूँ। अहम पिबामि, मैं पी रही हूँ, ठीक है। फिर अहम खेलामि, ठीक है, मैं खेल रही हूँ। जैसे ही अहम पठामि, मैं पढ़ रही हूँ। अहम
हसामि मैं हंस रही हूँ, और अहम लिखामि मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम हमारे बारे में बात करते हैं तब वहां पे हम अहम शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे ही क्रियापद में अंत में हम मी लगाते हैं, गच्छामि, आगच्छामि, खादामि, पिबामि, खेलामि, पठामि, हसामि और लिखामि। ठीक है जी। अंशुल जी, कोई प्रश्न है? एक मिनट। हाँ, एक सुजाना जी पूछ रही है, तो क्या संस्कृत में थर्ड पर्सन नहीं होता, या प्रथम पुरुष को ही हम थर्ड पर्सन कहते हैं? नहीं नहीं, प्रथम पुरुष को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। मतलब इन संस्कृत व्हेन वी सी पुरुष कैसे होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष इज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश का जो होता है, ही इज द थर्ड पर्सन। ठीक है, और उत्तम पुरुष जो होता, मध्यम पुरुष जो होता है, दैट्स यू, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और उत्तम पुरुष इज द थर्ड पर्सन ऑफ संस्कृत, जिसको हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जय कुमार पांडा जी. जी। He is asking, is the third person gender neutral while speaking? Can you please repeat it? Is the third person gender neutral? जब थर्ड पर्सन की, मतलब हम जब प्रथम पुरुष की बात करते हैं संस्कृत में, तो क्या वो जेंडर न्यूट्रल है, या उसमें हम जेंडर स्पेसिफाई करते हैं? Yes, we do specify. Okay. Yeah. Yes, आगे जा सकते हैं हम। हीरक जोशी जी का प्रश्न है जी कि दो लोगों के लिए क्या यूज होता है? हाँ, सो यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली संभाषण, जब हम स्पोकन संस्कृत की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट ओनली टू पर्सन्स। द रीजन बिहाइंड दैट इज बाकी की जो भाषाएं हैं जो हमें पता है, जैसे कि हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, उसमें हम सिंगुलर और प्लूरल ही पता है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे द्विवचन, मतलब जो संस्कृत में है वो, उसे हम यहाँ पे स्पोकन संस्कृत में वी आर नॉट टेकिंग इट, यस वो है, बट वी आर नॉट टेकिंग इट इन स्पोकन संस्कृत, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन कि अगर हमने द्विवचन भी लिया, ठीक है, तो इट विल बी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आगे जाते जाते। एज दिस इज द फर्स्ट डे, दीज थिंग्स सीम टू बी वेरी इजी, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे सिंगुलर आज ले रहे हैं, एंड देन विल टेक प्लूरल in the upcoming days later. But if we later, but अगर हम जो दो पुरुष को या क्या बोलते हैं, अगर हमने बोल लिया तो it will be a bit confusing and we want to avoid it. Okay. Yeah. Okay. We can go forward. Okay, fine. So Anshul ji, how much time do we have now? We already it is 12:45. Okay. 15 minutes ahead we are. Okay, fine. We can continue for five more minutes if you want, 5 to 10 more minutes. Okay, fine. So we'll continue for 5 minutes. We'll just see a story, Sanskrit story. Okay, and the rest of the topics will continue tomorrow. Okay. Okay. Yeah. So okay. Yeah. So we are going to listen to a story today. Okay, and I hope you all can see my video also, because I am going to act it. Okay. एकः काकः, काकः इज क्रो, ठीक है, कौवा। हाँ, एकः काकः अस्ति, सः तृषार्तः, सः तृषार्तः, तृषार्तः इज थर्स्टी, अस्ति। काकः जलम् इच्छति, काकः जलम् इच्छति, काकः जलम् इच्छति। सः सर्वत्र भ्रमति, he goes here and there, so सर्वत्र भ्रमति। काकः एकं घटं पश्यति, काकः एकं घटं पश्यति, घटे किंचित जलमस्ति, घटे किंचित जलमस्ति। काकः एकम् उपायं करोति, काकः एकम् उपायं करोति।
एकम एकम शिलाखंडम आनयति. शिलाखंडम is stones, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर से. काकः एकम एकम शिलाखंडम आनयति घटे घटे क्षिपति. शिलाखंडम आनयति घटे क्षिपति. क्षिपति मतलब डालना. ठीक है. जलम उपरि आगच्छति. जलम उपरि आगच्छति. काकः जलम पिबति. काकः जलम पिबति. संतुष्टः भवति. संतुष्टः भवति. ठीक है. So this was the story which I wanted to tell you today. I hope it is clear to all. सबको ये कथा स्पष्ट है जी. जी. और कोई प्रश्न है अंशुल जी? नहीं नहीं, ठीक है जी. ठीक है. सारे प्रश्न अगर बीच में कुछ आते हैं तो हो सकता है. जी. अभी सब प्रश्न हो गए. ओके. ठीक है. We are done for today then. Okay. Yeah. So are there any web worksheets which we will be sending them today? Yes, we will be sending them a worksheet today on the topics we have done today, and we will be also sending the PPTs. Okay. Yesterday's PPT and today's PPT. We will send it. Okay. So whatever PPTs we have covered, we will be sending. जितने PPTs हमने किए हैं, वर्कशीट और ये सारी चीजें हम मेल के थ्रू ग्रुप में ही भेज देंगे. उसके अलावा आई थिंक कोई प्रॉब्लम वैसे तो कनेक्ट होने में नहीं हो रही है, बट इन केस अगर कभी ऐसा होता है तो प्लीज आप लोग अपने स्पैम फोल्डर में भी चेक करिए, और साथ साथ में अपने जो अपडेट फोल्डर होता है कुछ में वो लोग बनाकर रखते हैं, जैसे प्राइमरी, फिर प्रमोशन और फिर सोशल, ऐसे 3 फोल्डर्स हैं. एक अपडेट फोल्डर भी होता है, उसमें भी जाके देख सकते हैं अगर लिंक उसमें भी आ रहा है. वी अपलोड द लिंक बाय नॉर्मली 11 बजे, 11:10, 11:15 के पहले हम आप लोगों को इन्विटेशंस भेज देते हैं. एंड आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कनेक्ट करने में, सो दैट्स वेरी गुड, एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड नंबर्स एज वेल. सो वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू for attending this with so patience and making this session very interactive and keeping your systems on mute as well. We are very much thankful to all of you, and at the end this would not have been possible by without the such मेहनत जो हम लगी है इसमें in such a short notice. सनिता जी की बहुत ही कम समय में वो हमारे लिए के कोर्स के लिए रेडी हुई हैं. सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी पार्टिसिपेंट्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ थिंक इंडिया गुजरात, वी थैंक यू सनिता जी फॉर preparing this. Tanmay ji saying I was unable to join the session attend yesterday due to a storm in West Bengal. वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी तटवर्ती राज्यों में जिस प्रकार एक साइक्लोन आया हुआ है, हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे. और तन्मय जी, यदि आप कल का सेशन नहीं अटेंड कर पाए थे तो हम आपको पीपीटीज मेल करेंगे, और उन पीपीटीज में से कुछ यदि प्रश्न है आपको तो वो आप मेल करके डायरेक्टली या तो थिंक इंडिया गुजरात thinkindiagj@gmail.com पे आप भेज सकते हैं, और उसके बाद हम वो प्रश्नों को लेंगे यदि समझ में नहीं आता है. तो वैसे कल का जो सेशन था वो इंट्रोडक्टरी ही था, तो आई डोंट थिंक सो कि वैसे कुछ होंगे. Can we get the recordings, as the pronunciation is also important? Yes, we are recording all these sessions, and once the sessions are completed, we will post the recordings. अभी वो तय नहीं हुआ है कि कैसे करना है, लेकिन हम रिकॉर्ड सारे सेशंस को कर रहे हैं और वो भी हम आपको जरूर आगे पहुंचाएंगे. ठीक है. So I think we have taken all the comments and questions. Thank you very much. And thank you Sanita ji once again. Thank you. And कल फिर से हम एक बार सुबह कोशिश करेंगे 11:25 तक सभी जुड़ जाएं, ताकि 11:30 पे हम शुरू करेंगे. सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम. We can now leave the meeting because I cannot end the session, so I would request all of you to kindly leave the meeting so that we can end the session. Thank you all. Thank you so much. Please leave the meeting in your personal interview.